Hi. We're going to deal with Newton's formula. Newton uncle thought the way sound propagates in air, it's an isothermal process. Isothermal क्या होता है? Contradiction है क्या था वो? Condensation and diffraction. ऐसा ना? वैसा ही था. Just kidding. Sound wave propagates, right? Sound wave propagates. बेटा वो first switch बंद कर दो ना आप पे एकदम. हाँ वो first नहीं था but okay चलो let me. So when we talk about wave propagation, right? Sound wave, it propagates in the medium and it is propagating like this. ऐसे होता है बाद में दूर जाता है बाद में ऐसे होता है बाद में दूर जाता है fine. Condensation, rarefaction, condensation, rarefaction. और Newton uncle thought कि जब ऐसा wave propagate हो रहा है, there is no temperature difference at all, right? So what he thought, the wave propagation, sound wave propagation, that process itself, बेटा यहाँ पे आ गए आप वापस, है ना? So वो propagation जो होता है wave का, that is a isothermal process, fine? And if it is isothermal, we know the temperature remains constant throughout the propagation, and hence we consider PV is equal to constant. Is it clear? Any doubt on this? Any doubt on this? Cool. Now we are going to take the differentiation of this thing with respect to V. So we can say that P, we are going to develop something. Bulk modulus का एक कुछ है ना? क्या है? P divided by dV by V. ऐसा है ना कुछ? Minus P divided by dV by V. Right? That is bulk modulus. Right? That is bulk modulus. Bulk modulus का formula पता है ना? Bulk modulus is equal to P divided by dV by V. है ना? I love you, Joe. Done? Fine? Okay. So we can say that bulk modulus is, I want to derive something that sort. So we can say that d by dv of pv is equal to 0. Constant का differentiation क्या हो जाएगा? 0. कुलसुम बराबर? Fine? Okay. So we have got p dv by dv plus v dp by dv is equal to 0. Clear? Fine? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना वहाँ पे? dp आता है, p नहीं आता है, dp आता है, dp. Fine? dp. क्यों? हाँ ये वन हो जाएगा नहीं भाई ना? इसको कांस्टेंट रखा, इसके साथ डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो गया, बाद में इसको कांस्टेंट रखा, इसके साथ डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो गया। बस वॉल्यूम के साथ दोनों चेंज होता है, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम तो चेंज होगा ही होगा, बस वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो उसके साथ पी भी चेंज होगा, प्रेशर, राइट? वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कमती होएगा, और प्रेशर वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा। बेटा पीले लगा दे। अब आओ, पानी आओ। नदी पानी? अरे सा। बेटा उसको बाहर जाना। पानी पी लेने दो उसको। जाओ। आजू पानी आजू। चलो। So I have got dv by dv तो 1 हो गया, dp by dv तो 1 हो गया, so p plus v dp by dv is equal to 0. बराबर? हाँ होने गया, so p is equal to v. भाई v को अपन सुमड़ी में नीचे ले जाते, dp divided by dv by v, और हाँ में गया तो माइनस भी हो गया, साला it is nothing but bulk modulus. So b is equal to प्रेशर हो गया, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन? हाँ वीडियो है ना अवेलेबल हार्ड डिस्क में, ब्लैक हार्ड डिस्क। ओके नाउ लेट अस सी। सो जब हमें उसका बल्क मॉड्यूलस इट्स ओके, तो अगर खांसती रहेगी तो चलेगा। हाँ बेटा इट्स ओके, सिट, दैट्स फाइन।
So we have got yesterday we have derived a formula like velocity is given by under root b by rho. Last time we have derived this formula that velocity of sound wave is given by this. So that exactly we have got. V is replaced by P, pressure of the atmosphere. So it is under root P divided by rho. पता चला कि नहीं पता चला? So if we know the density of air, if we know the density of air and if we know the pressure, atmospheric pressure, boss, fine. So we can definitely find out the velocity of sound propagating in the medium, that is air. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? एयर का प्रेशर पता है मेरे को, एयर का डेंसिटी पता है मेरे को, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एयर. समझ पड़ा ये? फाइन. सो इफ आई नो द स्पीड ऑफ obtain the speed of sound in air at STP using Newton's formula, which is this, and it's given mass of 1 mole air, is equal to 29.0 into 10 power minus 3 kg, and we have got pressure P is equal to 1.01 into 10 power 5 Pascal. फाइन. अब मुझे डेंसिटी चाहिए, तो 1 लीटर में इतना आएगा कि नहीं आएगा एयर? फाइन. तो 1 लीटर मतलब वॉल्यूम कितना हुआ? 1 लीटर वॉल्यूम को अपने को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. 22.4 into 10 power minus 3. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? मीटर क्यूब. So we have got, ये सारा केमिस्ट्री में पढ़ी चुके हो, right? Okay. So we can say that we have got density is equal to mass divided by volume. What is the mass? It is 29 into 10 power minus 3 divided by volume is given by 1 liter volume is given by 22.4. 22.4 into 10 power minus 3, which comes out to be, बस डायरेक्ट वही लिखी है, दूसरा कुछ लिखा नहीं है. 29 divided by 22.4. फाइन. सो स्पीड is equal to under root P divided by rho. अंडर रूट प्रेशर कितना है? इतना पास्कल. 1.01 into 10 power 5, 29 multiplied 22.4, which comes out to be 279.3. Absolutely correct. 279.3 meter per second. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Clear? Fine. अय्यो, ऐसा कैसे? हमें पता है it is not this much. It is 330, 333, 332. उतना आता है कि नहीं आता है? है ना? साउंड का जो वेलोसिटी है वो 330 है, ये इतना आया. तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस थोड़े गड़बड़ हुए थे. They have done some practicals at that time. फाइन. लैपलास अंकल ने बोला, लैपलास ने थोड़ी चैपलास की, राइट? तो लैपलास अंकल ऐसे बोले, लैपलास अंकल थोड़े लुच्चू थे. नहीं, एक्चुअली फूरियर लुच्चू थे. जोसेफ फूरियर. 2 मिनट. लैपलास ने वो चीज दिखाई और लैपलास का वो फूरियर में एफएफटी ट्रांसफॉर्म हो गया. हाँ, लैपलास अंकल बेचारे बहुत क्यूट थे और भोले भाले थे. नहीं, बहुत भोले भाले. और फूरियर अंकल ने ना थोड़ा सा उनका रिसर्च कुछ कर डाला था, ऐसा है. फाइन. और फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म डेवलप किया था. पढ़ने जैसा है लैपलास अंकल के बारे में, फूरियर अंकल के बारे में. पढ़ोगे आप लोग, पढ़ोगे. जो भी इंजीनियरिंग में जाओगे वो पढ़ोगे. फाइन. बाकी नहीं जाओगे तो नहीं पढ़ोगे. सो वी गॉट दिस. लैपलास अंकल ने बोला कि नहीं यार, एक्चुअल रिजल्ट्स अलग है, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स अलग है, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया. लैपलास अंकल ने बोला कि आइसोथर्मल, लैपलास अंकल ने बोला कि जो न्यूटन अंकल ने बोला है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है. साला भेगे होने के बाद कैसे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? कंडेंसेशन होता है, इकट्ठा होते हो तो गर्मी तो ऑटोमेटिकली होती है. फाइन. आप लोग क्लास में नहीं थे तो क्लास में इतनी गर्मी नहीं थी, राइट? कंडेंसेशन हो गया, क्लास में गर्मी हो गई कि नहीं हो गई? बराबर. बाहर चले जाओगे वापस ठंडी हो जाएगी, राइट? मतलब कंडेंसेशन के टाइम डेफिनेटली टेम्परेचर अलग है, रिफ्रैक्शन के टाइम डेफिनेटली टेम्परेचर अलग है. इट्स नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस. अंकल सेड इट्स नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस. फाइन. अंकल ने बोला कंडेंसेशन के वक्त जो भी हीट एनर्जी डेवलप होता है, जब रेयरफैक्शन होता है वो उसमें हो जाता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? हीट एनर्जी मेंटेन रहता है. इट्स अ एडियाबैटिक प्रोसेस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
डन बेटा, राइट? कौन सा प्रोसेस? 9 आगे कुलसुम 9 हाँ बराबर. सो पता चला कि नहीं पता चला? चला ना? हाँ मैं ऐसे देख रहा हूं. कुलसुम पता चला? हाँ क्या मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? मैंने ऐसा नहीं कहा था. नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने ऐसा कहा वापस. मैंने बोला आपको बोल देने का मैं गार्डन. बराबर, फाइन. मैंने ऐसा बोला सी, मैंने ऐसा बोला कि न्यूटन अंकल ने जो बोला है कि वो प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, पर लैप्लास अंकल ने बोला कि अगर उसको हम आइसोथर्मल मान के चल रहे हैं तो एक्चुअली हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो प्रैक्टिकल रिजल्ट से मैच नहीं करते. और अंकल ने ऐसा भी बोला कि कैन नॉट बी आइसोथर्मल प्रोसेस जस्ट बिकॉज जब कंडेंसेशन होता है, इकट्ठा हो जाना, तो गर्मी बढ़ता है. फाइन, गर्मी बढ़ता है, हीट एनर्जी बढ़ता है. और बाद में जब रेफ्रेक्शन होता है, बराबर लोटाई, जब रेफ्रेक्शन होता है तब क्या होता है? वही गर्मी वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है, हीट एनर्जी. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? सो दिस प्रोसेस अगेन हीट एनर्जी रिमेन्स सेम. फाइन, जितना डेवलप हुआ उतना एब्जॉर्ब हो गया. सो वी कैन से दैट दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे लैप्लास ने अपनी चापलास की. क्लियर? फाइन, ओके. सो लेट्स डील विद लैप्लास करेक्शन. सो लैप्लास के करेक्शन के अंदर द वे आई हैव टोल्ड यू, वो पूरा थियरी आएगा. क्या? कि भाई अंकल ने बोला था आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल नहीं है. हीट एनर्जी जनरेट होता है कंडेंसेशन के टाइम, और वही हीट एनर्जी रेफ्रेक्शन में एब्जॉर्ब हो जाता है. घुस गया ना दिमाग में? घुस गया. अबे और याद रखने की जरूरत नहीं है, पता है इकट्ठा हुए गर्म, दूर गए ठंडा. क्लियर? क्लियर? फाइन. वो थियरी लिखना पड़ेगा, वो थियरी लिखना पड़ेगा. वी आर नॉट राइटिंग इट राइट नाउ. फाइन. सो इसी वजह से प्रोसेस कैसा हो गया? एडियाबैटिक. फाइन. न्यूटन अंकल ने बोला आइसोथर्मल, लैप्लास अंकल ने बोला एडियाबैटिक. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. कुलसुम डन. ओके. सो नाउ वी कैन से दैट लैप्लास करेक्शन. फाइन. तो उन्होंने ऐसा बोला कि एडियाबैटिक, अब एडियाबैटिक का स्पेलिंग वगैरह होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस. उन्होंने क्या बोला? प्रोसेस इज आइसोथर्मल. यहाँ पे एडियाबैटिक बोल दिया, और यहाँ पे हम लोग ऐसा बोलेंगे पीवी रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है. बराबर. सो अगेन डी बाय डी करने का, पीवी रेज़ टू गामा रखने का, बराबर सहरमा नहीं रखने का, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? डन. ओके, फाइन. सो पी बाहर निकल गई, डी बाय डी. ओ माय गॉड, वी रेज़ टू गामा हो गया, प्लस अभी वी रेज़ टू गामा निकलेगा और अपने को क्या हो जाएगा? डीपी बाय डी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0. समझ पड़ा? फाइन. ये क्लियर? क्लियर? रामजू, रमीला, चल. दिस इज फाइन. कुछ भी है ऑब्वियसली. सो गामा v रेज़ टू गामा माइनस 1. क्लियर? एंड डीवी बाय डीवी 1, डीवी बाय डीवी 1. फाइन. प्लस अल्लाह. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ा ये कैसे डिफरेंशिएशन हुआ? चलो नहीं. x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन nx रेज़ टू n माइनस 1 होता है. x रेज़ टू n x रेज़ टू n माइनस 1 ना. समझ पड़ा? समझ पड़ा? नहीं तो ना बोल, चलेगा. नहीं तो ना. x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन nx रेज़ टू n माइनस 1, n x रेज़ टू n माइनस 1. क्लियर? क्लियर? मार खाओ छे मार, એવું કે નહીં ઓફિલ ગાઉ છે. ना, ये पता चला कि नहीं पता चला? ये क्लियर सबको? कोई डाउट? सो प्लस v रेज़ टू गामा dv by dv is equal to 0. बराबर. फाइन. नाउ लेट्स ची. सामने ही होगा तो b लेट्स ची. लेट्स. सर दिखता ही नहीं है ऐसा ना? आई नो.
पर अभी दिखेगा ना, हाँ। So P gamma v raised to gamma minus 1 is equal to P gamma v raised to gamma सामने चला जाएगा minus v raised to gamma dipli by dipli। समझ पड़ा फाइन। नेक्स्ट टाइम जे तरेंगे वैसे जमा फाइन तारा में पेलू इमेजिनेशन आई जाए ना फट। So who is comfortable with those imaginations? बराबर છે તારે જન્મજયની બાજુમાં બેસવાનું બરાબર છે ફાઇન ઓકે સમજ પડી એટલે પછી તારું તો છૂટું થઈ ગયું છૂટાછેડા ડન સો that is of course so p gamma v raised to gamma minus 1 is equal to જોઈ લે બેટા જોઈ લે આવું પાછું જોવા નહીં મળે જોઈ લે પાછું જોવા નહીં મળે બેટા આપડી ધ્યાન minus v raised to gamma minus 1 into v raised to gamma can be represented by v raised to gamma minus 1 into v ये 1 ऐड होगा सेम हो गया यानी मैं दो बराबर समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा ओके इनटू dipli by dipli गॉन बराबर जी so here p that is gamma p is equal बहुत गंदा आप लोग dp minus dp by dv by v समझा ये क्या हो गया वुल्फ मॉड्यूलस बराबर वही so gamma p is equal to b अंकल ने बोला कि अभी एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से ना वहां पे क्या आता था वहां पे b is equal to प्रेशर आता था अभी क्या हो गया अभी ऐसा हो गया b is equal to गामा into प्रेशर हो गया प्रेशर कहाँ चला गया गामा के साथ राइट ओके तो अभी क्या हो जाएगा अपना जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी कैसे हो गया अंडर रूट b divided by root done done and d is what gamma p right gamma they do so here is v समझ पड़ा नहीं पड़ा गामा p हाँ चल डन अला डन फाइन अभी गामा का वैल्यू है ना गामा का वैल्यू फॉर आयर इज 1.41 आई गेस 1.41 है गामा आयर इज इक्वल टू 1.41 तो अपना अंडर रूट p बाय रो कितना आ रहा था 279.3 बराबर सो आई कैन से दैट v is equal to under root gamma into 279.3 which is under root 1.41 into 279.3 देख कितना आ रहा है 331.65 ये 331.65 मीटर पर सेकंड समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा क्लियर सबको कोई डाउट पक्का डन फाइन चलो नाउ एवरीबॉडी विल ओपन देयर बुक भागे नंबर 191 पेज नंबर गाइस वो पेज खोला कि नहीं खोला ओए PV is equal to mu RT अगर mu 1 मोल है तो PV is equal to RT हो गया कि नहीं हो गया फाइन ओके मार्क्स यू स्टार्टेड PV is equal to RT हो गया कि नहीं हो गया अल्लाह समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा अगर 1 मोल के लिए बात करें 1 मोल बराबर फाइन तो अपना P क्या हो गया P is equal to RT by V हो गया कि नहीं हो गया फाइन इस वैल्यू को पुटो so I will be having velocity is equal to under root gamma RT by rho into V oh rho into V mass फाइन पता चला ना मास अपन वॉल्यूम चेंज कर लो is equal to under root
ગામમાં આરતી થઈ અને નીચે માસ થઈ સમજ પડી ડન અલા ક્લિયર बस तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी फाइन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी दिखा बुक में दिखा फाइन अने बस अभी सुनने का है और बुक का देखने का है ओए अभी समझने का है चलो सुनना है बुक में भी देखना है सबका ध्यान बुक के अंदर V is proportional to under root T. If pressure P of the gas is changed keeping the temperature constant, temperature constant मतलब PV is equal to constant, fine, okay. So P by rho remains constant. पता चला क्यों P by rho constant रहा? अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, so PV is equal to constant हुआ, तो उन्होंने क्या बोला P by rho constant होगा। अबे P by rho क्योंकि constant क्यों का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चढ़ के ऊपर आ जाएगा P के साथ, तो वो PV बन गया कांस्टेंट। मास तो कभी वैसे भी चेंज नहीं होने वाला है, समझ पड़ा? सो दैट्स व्हाई P by rho is constant। मैं वापस एक बार समझाता हूं, अब जो भी गार्डन में थे वापस आ जाए, गार्डन पीपल फॉर यू। सो अगेन the thing is T is constant, so PV is equal to constant. PV is equal to constant, तो बुक में ऐसा बोला है कि T constant होने की वजह से P by rho is also constant. तो P by rho कैसे constant हुआ? तो P by rho is equal to P divided by mass divided वॉल्यूम कूद के ऊपर आ गया, तो PV divided by mass। समझे कि नहीं समझे? PV divided by mass आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई नहीं, PV divided by mass। अब PV constant हो गया, mass तो constant ही है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हो रहा है? Done. So that's why क्या हुआ? Don't लिखा है तेरे पे, चल। So don't को भी ऐसे चक कर डाला है, ऐसे चक। Sorry. So पता चला P by rho is constant, है ना? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, so P by rho कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? P by rho कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। Constant as the density of the gas directly varies as the pressure. Therefore, the speed of sound in gas does not depend on the pressure of the gas at constant temperature and constant humidity. यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ह्यूमिडिटी डील्स विद मास, प्रेशर डील्स विद दैट थिंग, बराबर? यानी वो सीधा उस पे वेलोसिटी पे आ जाएगा। क्लियर? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो मोस्ट एम्पी, इसको टिक मार्क कर दो, ये आके इफ प्रेशर से चालू करके ह्यूमिडिटी तक, बराबर? फाइन, टिक लिया, ओके। चल, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, अबे दिस इज आल्सो यू हैव टू टिक एंड रिमेंबर डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। बोल लो भला। फाइन, वाटर वेपर की डेंसिटी इज लेस देन ड्राई एयर, मतलब अगर रो एयर है और सारी टाल है, सो हमारी रो एयर है और रो कौन सा वाटर है? वाटर वेपर का V से चालू होता है, W से चालू? थैंक यू सो मच। ओके, सो अगेन डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, मतलब एयर का डेंसिटी बड़ा है। फाइन, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? डेंसू बड़ा है उसका, अगर डेंसू बड़ा है तो डेंसू बड़ा है तो वेलोसिटी कम। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो ड्राई एयर में हौले हौले जाएगा बेटा, यहाँ पे ड्राई एयर में हौले हौले जाएगा और वेपर वाली में चला जाएगा। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? अल्लाह डन हो रहा है? फाइन, फास्ट से मजे से फास्ट, हाँ वॉटर वेपर में फास्ट जैसे, राइट? ओके। અને ધીરું ધીરું ક્યારે જશે? ડ્રાય આયર, બરાબર? ફાઇન, ચલો फाइन। इलुस्ट्रेशन नंबर 10, सबका ध्यान इलुस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर। show that the velocity of sound in gas at temperature T, it's gas, in Spanish we call it gas, or and water to we call as agua, not hotova, it's agua, right? And वो आप लोग जो पीते हो ना सोडा टाइप्स,
हाँ, थम्स अप विद सोडा, इट हैज सोडा इन इट, राइट? या तो सिर्फ अगर आपको सोडा ऑर्डर करना है स्पेन में, तो यू हैव टू टेल देम agua con gas. Agua con gas. Agua con gas. Con stands for with. Con stands for with. Contigo. याद आ रहा है? बाइलांडो में contigo. Yeah. नहीं, it's different. Contigo, that word is with. Contigo. Illuten. Show that the velocity of sound in gas in a gas at temperature. See, यहाँ पे ना ऐसी कभी फास्ट नहीं हो सकता, एडी ऑब्जेक्ट है, ऐसी फास्ट ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, T is given by Vt is equal to V01 plus T divided by 546. Fine. गाइस, ये पूरा एग्जाम्पल है खुद से अभी करने का, बराबर? चालू हो जा, ये लिखने का नहीं, ये लिखने का, खुद से चालू करने का, इलस्ट्रेशन 11th में खुद से करने का अभी के अभी, और 12वां मैं करवा, चलो 9th मैंने करवा लिया, सर 9